लोकपाल बिल के लिए बड़े पैमाने पर हिमायत जुटाने की सही करते हुए राहुल गांधी ने तमाम सियासी जमातों से इस कानून साजी की तायद के लिए अपील करते हुए कहा है कि ये करप्शन के खिलाफ जद्दोजहद में बहुत ही ताकतवर आला कार है। कांग्रेस हेडक्वार्टर्स में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने ऐसी बातों को मुस्तरद कर दिया कि हुकूमत इस कानून साजी को इसलिए आगे बढ़ा रही है क्योंकि उसे दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी के हाथों शिकस्त हुई और अन्ना हज़ारे की भूख हड़ताल भी जारी है। वाज़ेह है कि लोकपाल 2 शुबे को राज्यसभा में मुबाहिस के लिए पेश किया जाना है। दरी असना नायब सदर कांग्रेस ने कहा कि हमारी जिम्मेदारी इस मुल्क को ताकतवर लोकपाल बिल देना है। हमने 99% काम मुकम्मल कर लिया है और हमें सियासी जमातों से 1% तायद है और हम दर हकीकत इस काम की तकमील करते हुए लोकपाल तश्कील दे सकते हैं। इस बिल पर समाजवादी पार्टी की मुखालिफत का ज़ाहिर तौर पर हवाला देते हुए राहुल ने कहा है कि तमाम पार्टियों को मिलकर इस बिल को कामयाब बनाना पड़ेगा और वो इस बिल की तायद के लिए तमाम पार्टियों से अपील करते हैं। The discussion on the Lokpal bill has been going on now for some time, and what we have now is a bill where there is broad consensus, a strong bill, a bill that will actually completely transform the issue of corruption. I just want to say that the Congress party fully supports this bill, and we would very much like the opposition and other party members to work with us to ensure that this bill is passed in Parliament. That's why we are having this press conference. I think this is an extremely important bill, and we are 99% there. And I think if we get the support of all the parties, we can actually pass this bill, which I think is very, very important. Rahul, do you think the way the parliament is functioning and with your own allies demanding debates on various issues like inflation, do you think that the Lokpal bill actually can be passed in this session? Well, what we would like is that all the parties. This is a matter of national importance, and what we would very much like is that parties put aside their concerns and actually do this job. The Congress party is fully committed to this. We are going to pass this bill, but we need other parties to work with us to deliver this. Yes. All other parties, the BJP and our allies. I think the point is, please. भैया ये point ये है कि ये national importance का बिल है और कंसेंसस है। ये नहीं है कि डिसएग्रीमेंट है, कंसेंसस है, ब्रॉड कंसेंसस है। तो सब पार्टियों को मिलकर ये काम अब पूरा करना चाहिए। हम यहाँ तैयार हैं, कांग्रेस पार्टी इसका पूरा सपोर्ट करेगी। बाकी पार्टियों से मैं विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये नेशनल इंपॉर्टेंस की चीज़ है तो वो सपोर्ट करें। This can be taken by any of you. There seems to be a certain urgency now in passing this bill. Is it because this parliament is coming to an end and you want to have something to show to the voter? Is it after your recent election defeats? Actually, the Aam Aadmi Party took up this issue. Why this urgency? No, this is not an urgency. This is something we've been struggling with for a while. At every step, that Parliament is disrupted. So it is not that we've not been trying to pass this bill. We've been working on it full time. What I'm saying is we are 99% there. There is a broad consensus. This is a much, much stronger bill than anything before. And essentially all the parties should get together and close this. Nothing to do with the Aam Aadmi Party. No. This is to do with corruption, and this is to do with providing a serious weapon to fight corruption in this country, similar to the RTI. मैं एक एक करके वहाँ पे आ रहे हैं, उधर से आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी विरोध कर रही है इसका।
तो क्या विरोध के बावजूद आप पास करेंगे? क्योंकि कोशिश की जा रही है फ्राइडे से ही हंगामे के चलते, चाहे हंगामा हो तो पास करेंगे इसको, नंबर 1। नंबर 2, क्या अन्ना भी अनशन पे बैठे हुए हैं लोकपाल को लेकर के, और अरविंद केजरीवाल दिल्ली में जिस दिन से उनकी विक्ट्री हुई है, आपको लगता है अन्ना की जीत करवा करके आप एक तरह से डिफीट देना चाहते हैं आम आदमी पार्टी को? नहीं, देखिए, ये जीत डिफीट की बात नहीं है। इस बिल की जरूरत है। जीत किसी की भी हो, हार किसी की भी हो, डिफीट हो, विक्ट्री हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। ये बिल हिंदुस्तान को मदद करेगा, बहुत बड़े तरीके से मदद करेगा, इसलिए हम इसको पास करना चाहते हैं। ये हम बहुत समय से कोशिश कर रहे हैं। अब कंसेंसस आ गया है, अब बिल्कुल फिनिशिंग लाइन पर है और ये किया जा सकता है। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल कमिटेड है इसको पास करने के लिए। एक सेकंड बस। पाकिस्तान के सूबे पंजाब के वजीर आला मियां शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान को महादाराई तर्क करके अमन और बाहमी ताउन का सफ़र शुरू करना चाहिए। ज़राए के मुताबिक मियां शहबाज शरीफ ने, जो हिंदुस्तान के दौरे पर है, हिंदुस्तान पंजाब के वजीर आला सरदार बादल सिंह प्रकाश की तरफ से दिए गए इस्तकबालिये के मौके पर कहा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की हुकूमतें यकीनन वो दीवारें मिस्मार कर सकती है जो खित्ते की तरक्की, खुशहाली और सलामती की राह में रुकावट है। पंजाब के वजीर आला ने पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना में एक ब्रीफिंग से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान ज़राई शोबे में हिंदुस्तानी पंजाब की तरक्की से इस्तेफादा कर सकता है। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ एक ऐसे सियासतदान हैं जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों ममालिक के दरमियान मौजूदा कशीदगी ख़त्म करना चाहते हैं। चुनांचे शहबाज शरीफ ने तवक्को ज़ाहिर की कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान बाहमी तिजारत से मुतालिक अहम फैसले करने में जल्द कामयाब हो जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा इमरान खान ने कहा है कि उनकी जमात महंगाई के खिलाफ 22 दिसंबर को लाहौर में एक और सुनामी का मुजाहरा करते हुए एहतजाजी रैली निकालेगी। इमरान खान ने महंगाई के खिलाफ एहतजाज करने का ऐलान हफ्ते को लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। उन्होंने कहा कि उनकी जमात अपनी सियासी हरीफों के साथ मिलकर एहतजाज करेंगी, जबकि उन्होंने दूसरी सियासी जमातों को भी उनके एहतजाज में शरीक होने की दावत दी। इमरान खान ने दावा किया कि तहरीक इंसाफ पाकिस्तान में वाहिद सियासी जमात है जिसके पास स्ट्रीट पावर है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो रोकने वाले खुद नताइज के जिम्मेदार होंगे। तहरीक इंसाफ के सरबराह ने मजीद कहा कि हुकूमत का हनीमून का वक्त ख़त्म हो चुका है। अमीर के लिए एक कानून और गरीब के लिए दूसरा कानून एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। उन्होंने मजीद कहा कि वक्त आ चुका है कि इस बात का फैसला हो कि मुल्क में या तो सिर्फ एक ख़ानदान की बादशाहत का ऐलान हो या सही मानों में जमहूरियत की तरफ पेशरफ्त हो। पीरियड है वो देर का ख़त्म हो चुका है। हमने बड़ा मौका दिया, सोच ये थी कि हम हुकूमत को मौका, ये ना कोई कहे कि हम रास्ते में पत्थर अटका रहे हैं हुकूमत के। तो अब जिस तरह की महंगाई का सामना पाकिस्तानी अवाम कर रही है, एक पॉलिटिकल पार्टी का फ़र्ज़ है कि अवाम की ख़यालात, उनकी सोच, उनकी तकलीफ़ों की नुमाइंदगी करे। और 22 को आप देखेंगे कि वो जो कह रहे थे कि इलेक्शन के बाद सुनामी नज़र नहीं आ रही, 22 को आपको एक सुनामी नज़र आएगी। हमारे पास वो स्ट्रीट पावर है जो किसी पार्टी के पास नहीं है। अगर अपना हमारा जो हक है कि प्रोटेस्ट करना एक जमहूरियत में हक है, अगर इसको रोका गया, जिम्मेदार वो होंगे जो। फ़लस्तीनी इलाके गाज़ा पट्टी में शदीद बारिश की वजह से आने वाले सैलाब के पेश नज़र 5000 अफराद को अपने घरों से मुंतकिल करके महफूज मकामात पर ले जाया गया है। इमदादी कारकुन पानी की चढ़ती हुई सतह के बाइस कश्तियों के जरिए मुतासरीन तक पहुँचे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के कुछ एहलकारों ने गाज़ा पट्टी के शुमाली हिस्से को आफत ज़दा करार दे दिया है। मौसम सरमा के तूफ़ान एलिक्सा की वजह से ग़र्ब उर्दून और इसराइल के कुछ इलाक़ों में शदीद बर्फबारी भी हुई है। गैर मामूली हद की सर्दी की वजह से ख़ित्ते में लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है।
चुनांचे अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीम UNWRA के एक तर्जुमान ने बताया कि गाजा में ताहद निगाह पानी खड़ा हुआ है। उनका मज़ीद कहना था कि जाबालिया के नवाही इलाके एक बहुत बड़ी झील की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं, जहां 2 मीटर बुलंदी तक पानी खड़ा है और हज़ारों अफराद मुतासिर है। गाजा पट्टी में हमास की हुकूमत का कहना है कि गुज़िश्ता 4 रोज़ की शदीद बारिशों के बाद हज़ारों अफराद को स्कूलों और दीगर अबूरी पनाहगाहों में मुंतकिल कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक मशरिक़ वस्ता के नामानिगार रिलवन नील ने बताया कि गाजा में कई मकानात का तामीरी मियार दुरुस्त नहीं और इलाके में बुनियादी ढांचा नहीं है। इलाके में ईंधन की कमी की वजह से तवानाई का बहरान भी है। यरूशलेम जाने वाली शाहराहों को निजी गाड़ियों के लिए बंद कर दिया गया है। हुकाम का कहना है कि इसराइल में 30,000 घरों को बिजली की तरसील मुअत्तल है। बॉलीवुड अदाकार आमिर खान का कहना है कि अगर उनकी बेटी ईरा अदाकार बनना चाहेगी तो उन्हें एतराज़ नहीं होगा। वाज़ेह है कि आमिर खान और उनकी साबिक़ रीना के 2 बच्चे, बेटी ईरा और बेटा जुनैद है। आमिर खान ने एक सवाल के जवाब में कहा कि वो बहुत खुश है अगर उनकी बेटी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखना चाहती है, लेकिन वो उन्हें उसके लिए मजबूर नहीं करेंगे। अलावाज़ी आमिर खान ने कहा कि वो चाहते हैं कि उनके बच्चे फिल्म इंडस्ट्री में काम करें। एक सवाल के जवाब में आमिर ने कहा कि बतौर डायरेक्टर जुनैद के लिए उन्हें कोई अच्छी स्क्रिप्ट मिलती है तो वो इस फिल्म को हिदायत कर सकते हैं। वाज़ेह है कि जुनैद खान अभी राजकुमार हिरानी के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर फिल्म PK में काम कर रहे हैं। इस फिल्म में आमिर और अनुष्का अहम किरदार अदा कर रहे हैं। प्रियंका चोपड़ा को साल 2013 की हॉट वुमेन के तौर पर मुंतखब किया गया है। एक मशहूर मैगजीन ने अभी हाल ही में हसीन ख़वातीन पर एक सर्वे कराया था। इस सर्वे में प्रियंका चोपड़ा को हॉट वुमेन कहा गया है। यह मुसलसल दूसरा मौका है जब प्रियंका हॉट वुमेन मुंतखब की गई है। इस मैगजीन ने दिसंबर के शुमारे में सफ़ा अव्वल पर प्रियंका चोपड़ा को जगह दी है और उनका इंटरव्यू भी छापा है। प्रियंका चोपड़ा ने कहा, हॉट वुमेन की फहरिस्त में पहले मकाम पर आना उनके लिए फ़ख्र की बात है। वो वाहिद खातून है जिसे दोबारा नंबर 1 की पोजीशन मिली है। उन्होंने मज़ीद कहा कि वो हॉट लगने के लिए कोई ख़ास कोशिश नहीं करती। अगर उन्हें हॉट माना जा रहा है तो उसके लिए वो बहुत खुश है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। शहर हैदराबाद के 2 अलहदा मुकामात पर 2 चलती कारें शोलापोश, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं। जहानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में रन फॉर यूनिटी का एहतमाम, बीजेपी के आला कायदीन व सैकड़ों अफराद की शिरकत। रियासत के बेशतर अजला बशमूल शहर हैदराबाद व सिकंदराबाद में सर्दी की लहर में इजाफा, खासकर रात के औकात में दर्जा हरारत में कदरे गिरावट। और गाजा पट्टी में शदीद बारिश, 5000 से ज्यादा अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। रूबी चैनल के दोपहर खबरनामे में फिलहाल इतना ही। नूरी को और रूबी चैनल की सारी टीम को दीजिए इजाजत। इंशाअल्लाह अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।